ایک عالم تو پیش کیجیے، ہم دیکھیں وہ کون عالم ہے. تو حضور نے علامہ غزالی کی روح کو پیش کیا. سبحان اللہ. محمد غزالی علیہ السلام کا ابھی پیدا نہیں ہوئے، روح کو پیش کیا. تو ان کے روح سے، علامہ غزالی کی روح سے حضرت موسیٰ نے پوچھا ماں اسموں کا کیا نام ہے تیرا؟ تو کہا میرا نام محمد ہے، اب باپ کا نام یہ ہے، اماں کا نام یہ ہے، اب فلاں اب میں زندگی میں یہ کام کروں گا، وہ کام کروں گا، وہ کام کروں گا. تو حضرت موسیٰ نے کہا نام خالی پوچھا تو اتنا کام بتا دیا. کیا بات ہے. خالی نام نہ پوچھا تھا کہ تیرا نام کیا ہے تو اتنا جواب کہہ دیا. تو علامہ غزالی کے روح نے کہا اتنا لمبا جواب تو میں نے آپ ہی سے سیکھا. بولے کیسے سیکھا؟ بولے اللہ نے آپ سے کیا پوچھا تھا؟ وما تلک بیمینک یا موسیٰ. آپ کہہ دیتے میری عصا ہے. تو آپ نے کہا میری عصا ہے، بکریاں چراتا ہوں. تو ہم نے سوچا بڑا آدمی چھوٹے سے پوچھتا ہے تو لمبی بات اس لیے کرتا ہے کہ اسی بہانے کچھ دیر تک گفتگو ہوتی رہے گی. جی چاہتا ہے کہ چھیڑ کے ان سے ہو ہم کلام، کچھ تو لگے گی 150 والو جواب. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ. ہے کہ نہیں؟ حضور نے کہا غزالی ادب ادب ادب، نبی ہے ادب. تو خاموش ہو گئے. تو وہ ابھی پیدا بھی نہ ہوئے، حضرت موسیٰ کو ایسا جواب دیا. تو میں نے پوتے کا نام محمد غزالی. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ. بہت اچھے. اب عرف غزالی جی عرف غزالی. دادی نے نام رکھا محمد فرحان، تو دادی کہتی فرحان، ہم لوگ کہتے غزالی. اور اصلی نام ہے محمد ابراہیم عبداللہ. اللہ کرے کہ آمین آمین آمین. کوئی بعید بات نہیں ہو سکتا ہے. جی جی ہو سکتا ہے، بالکل ہو بالکل سکتا ہے، کیوں نہیں ہو سکتا ہے. بالکل. اور مفتی اعظم نیپال کا اتنا کرم اس گھر میں. جی جی بے شک بہت اچھی. کچھ نہ کچھ تو ان کا کرم کا چھینٹا ملے گا. انشاءاللہ. مفتی اعظم نیپال ہی نے تو ہم کو پڑھایا. اور ہم کیا ہے، یہ بلڈنگ دیکھ رہے تو ہمارے پیسے کا ہے، سب مفتی اعظم کے پڑھائی کا ہے. سمجھے کہ نہیں؟ سب پڑھا دیا. جی جی سبحان اللہ سبحان اللہ. دیکھو بخاری شریف کی حدیث ہم نے پڑھی ہے، ان سألنی لأعطینہ. اللہ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے یہ. حدیث قدسی اس کو کہتے ہیں کہ فرمان اللہ کا ہو اور راوی اس کے پیارے مصطفیٰ. صلی اللہ تعالیٰ. راوی اس کے کون ہو؟ پیارے مصطفیٰ. تو اس میں تو ذوق آسان صحیح کا سوال نہیں ہے، کیونکہ حدیث قدسی ہے. حضور فرماتے کہ اللہ فرماتا ہے ان سألنی لأعطینہ. میرا محبوب جو کہتا ہے، محبوب جو تو اللہ اس کو اسی وقت وہی عطا کر دیتا ہے. ہمارے آپ کہنا اللہ جیسے دیکھو غوث پاک کے گھر میں ایک چور گیا چوری کر. نمازی نہیں تھا، حاجی بھی نہیں تھا، قاری بھی نہیں تھا، مفتی بھی نہیں تھا، چور تھا. غوث کے گھر میں چوری کرنے گیا تو کمبل اٹھایا، اب اٹھایا تو اندھا ہو گیا، پھر رکھ دیا ڈر کے. رکھا تو بینا ہو گیا، پھر اٹھایا تو پھر اندھا ہو گیا، پھر رکھ دیا تو پھر اندھا ہو گیا، تیسری بار مکمل اندھا ہو گیا. صبح میں حضرت خضر آئے کہ حضور فلاں جگہ ایک ابدال کا انتقال ہو گیا ہے، ایک ابدال کا انتخاب کر دیا جائے. غوث اعظم فرماتے میرے گھر سے آج تک کوئی محروم نہیں گیا ہے، کہ کونا میں چور کھڑا ہے لے جاؤ اسی کو ابدال بنا دیتا. کیا بات ہے. سبحان اللہ ماشاء اللہ. اللہ کا وعدہ جو بولتا ہے اللہ وہی کر دیتا ہے. حدیث قدسی ہے. غوث کا لب ہلا، منٹوں میں چور ولی ہو گیا. بولو منٹوں میں چور ولی ہو گیا. ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ اللہ فرماتے بد صحیح، چور صحیح، مجرم و ناکارہ صحیح ہے، وہ کیسا ہی صحیح ہے تو کریمہ تیرا. یا غوث جب چور کو آپ ولی بنا سکتے ہیں تو ہم تو کلمہ پڑھنے والے آپ کے خدام ہیں. بد صحیح گناہگار صحیح، کرم ہو جائے تو ہمارا بھی بیڑا پار ہو جائے. اللہ فرماتے میری قسمت کی قسم کھائے سگانے بغداد. بغداد والے بغداد میں رہ کے غوث کا چرچا کرتے تو کون سا کمال ہے؟ وہاں غوث پاک کا مزار ہے، نہیں رہتے ہو کرتے ہو. کمال تو یہ ہے کہ ہم ہندوستانی ہندوستان میں رہ کے غوث کا چرچا کرتے. سبحان اللہ. تو فرماتے میری قسمت کی قسم کھائے سگانے بغداد،
हिंद में भी हूँ तो देता रहूँ पहरा तेरा, वाह हिंद में भी माशा हूँ तो अल्लाह, देता बहुत रहूँ पहरा पहरा तेरा। इंसलनी लओतयन हो, मेरे महबूब से कहो ना, वो लब हिला देगा तो हम दे ही देंगे। अल्लाह फरमाते देने देंगे, जरूर जरूर दे देंगे, जरूर जरूर ताकीद, जरूर जरूर दो ताकीद दे देंगे। जरा महबूब से तो कहलवा दो, क्या बात है। हाँ महबूब से तो कहलवा दो जी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कैसा महबूब है। आला हजरत फरमाते नबवी में, देखो कैसा महबूब है, नबवी में अलवी फस बतूली गुलशन, हसनी फूल हुसैनी है महकना तेरा। वाह आला फरमाते मेरे गौस ऐसे हैं कि नबी में नबी के लाडले हैं, नबी के आलवी फस मौला अली के फसले बहार हैं, बतूली गुलशन सरकार फातिमा के चमनिस्तान हैं, और हसनी माँ के तरफ बाप के तरफ से हसनी है और माँ के तरफ से हुसैनी सैयद हैं। तो फरमाते ये हसनी हुसैनी फूल हैं महकना तेरा, कि जिसकी खुशबू पूरी दुनिया में फैल रही है। बात है सुभान अल्लाह माशा अल्लाह। बगदाद में गौसे पाक के या खुशबू दरभंगा में है। बोलो नहीं है तो फातिया क्यों किया हर घर में भाई। गौस पाक के नाम ने आज वहाँ खुशबू है दरभंगा में। बोलो खुशबू कहाँ है? दरभंगा। हसनी हुसैनी फूल है महकना तेरा। और सुनिए भैया, अल्लाह का वादा है, जो ये कहता है तो हम कर देते हैं। जी जी फिर दो हदीस पढ़ के हम खत्म करते हैं, जी जी क्योंकि शायरों से टाइम मिले तब ना हम जी तकरीर जी जी है कि नहीं। और अपने यहाँ तकरीर हमको ज़्यादा लंबी करनी भी नहीं चाहिए, शायरों से नाज शरीफ सुननी चाहिए, मौका इन लोगों को मिलना चाहिए। हम तो बोलते ही रहते हैं। जी देखो बड़ा प्यारा वाक़या है वहाँ सलमान साहब जी बहुत प्यारा वाक़या। ये वाक़या कहाँ है? सन 1980 में मार्च का एक शुमारा है। पर्चे का नाम है पासबान, इलाहाबाद से निकलता था अल्लामा निज़ामी अलैहिर्रहमा का। सन 1980 मार्च के शुमारे में आखिरी सफ़ा पर है कमसिन वली। वाक़ये की सुर्खी क्या है? कमसिन वली यानी छोटा वली। छोटा वली कितना छोटा? 6 साल का वली। बोलो ना बाबा, 6 साल के वली थे। अच्छा ये रिजवान है क्या? अरे चलो कोई बात नहीं, अब टाइम भी नहीं है। हाँ कोई बात नहीं, बैठिए 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 बैठिए। आप सलामी पढ़ने के लिए आते तो और लेट से आते, अब अभी तुरंत सलाम होगा, 5-10 मिनट तो बैठना होगा। हाँ बोलिए। हाँ बैठ रहे हैं तो सुनिए। है कमसिन वली, क्या नाम था? कमसिन गौस पाक है। उस जमाने में एक औरत थी जिसको हुई 6 बेटियां। जब से आई हो काली बेटी बेटी पैदा करती हो, अब की बार बेटी होगी, हमला थी तो दे दूंगा तलाक। बेवकूफ़ शौहर जाहिल औरत बेटी और बेटा पैदा करती है। क्या अल्लाह बेटा बेटी देता है? कौन देता है बोलो? अल्लाह ना देता है जी। मगर था अनपढ़ शौहर, बोले तलाक दे दूंगा। रोती हुई गई गौसे पाक के वालिद सैयदना अबू सालेह की बारगाह में, हुजूर इस पेट में बेटी है कि बेटा? आपने कहा जाओ जाओ पेट में बेटी है। तो रोते हुए जा रही कि अब क्या बात हो, तलाक दे देगा। और रास्ते में 6 साल बच्चा गौसे पाक मिल ही गया। क्या बात है सुभान अल्लाह। बोले क्यों रोती हो जी? बोले तुम्हारे अब्बू ने कहा बेटी होगी तो शौहर दे देगा तलाक। ना जाओ अब्बा के पास, कहना हुजूर इतना तो बता दिया बेटी होगी, मगर आप अल्लाह के वली है ना, तकदीर तो बदल दीजिए। गई हुजूर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। फिर आ गई, हाँ हुजूर और मुकद्दर बदलिए के तलाक न हो। गौस पाक को आ गया जलाल। बोले ये रास्ता किसने बताया है? ये पता किसने बताया? अरे जलाल आ रहा है, ये रो रही है। पीछे से 6 साल बच्चा गौसे पाक आ गए। बोले मत रो, अब्बा को जलाल आता है तो आने दो। उनका बेटा अब्दुल कादिर दुआ कर देता है, मौला ये जितनी बेटियां छोड़ के आई सबको बेटा बना दे, इसके पेट में जो बेटी उसको भी बेटा बना दे।
जाओ दुआ कबूल हो गई, जाओ, क्योंकि अल्लाह कहता है कि जो महबूब कहता है वो कर देता है। क्या बात है, सुभान अल्लाह ने कहा जो महबूब कहता है वो कर देता हूं। सुभान अल्लाह। जाओ बेटी, यहाँ बेटे हो गए, अरे घर गई तो देखा कुल बेटियां बेटे हो चुके हैं। क्या बात है, सुभान और जो अल्लाह। पैदा हुआ वो भी बेटी नहीं बेटा ही पैदा होता है। क्यों? अल्लाह का वादा है जो महबूब के वही अता कर देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ान गौसे आज़म, नारे इस पर आला हज़रत का एक शेर सुन लीजिए। जी माशाअल्लाह। आला हज़रत फरमाते क्यों न कासिम हो कि तू इब्ने अबिल कासिम है, और क्यों न कादिर हो कि मुख्तार है बाबा तेरा। वाह वाह, या रसूल अल्लाह तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। सुभान अल्लाह। इस तरह की इस हदीस की रोशनी में इतने वाक़यात मुझे याद है, हवाला के साथ याद है, इधर उधर की बात नहीं करता हूँ मैं। अल्लाह का वादा है, देखो वली जो बोल दे वो हो जाता है, और वली से सच्ची मोहब्बत करो, सच्ची, दिखावटी नहीं कि या गौस है कि ना, गौस के नाम पे कोई दिन फातिया भी ना कहा, खाली या गौस। कैसी मोहब्बत है तुम्हारी? सच्ची मोहब्बत करोगे तो फायदा क्या होगा भाई? गौस से करो, ख्वाजा से करो। इस इलाके के कुतुब थे मुफ्ती आजम नेपाल जी। बोलो कौन थे मुफ्ती आजम? नेपाल। बोलो ना बाबा, आप लोग नहीं गए थे जनाजे में जी? हाँ। तो नहीं देखा 7-8 लाख मजमा किसके जनाजे में आता है? जो अल्लाह वाला होता है उसी की जनाजे में आता है। क्यों रे आदमी? जी जी। तो अगर सलमान मियाँ अल्लाह वालों से सच्ची मोहब्बत करेंगे तो होगा क्या? तो कुछ फायदा होगा तब ना मोहब्बत करेंगे। नहीं तो काहे को मोहब्बत करेंगे? तो तफसीर रूहुल बयान जिल्द खामिस फी तफसीर सूरत नहल सफ़ा 95 17 17 18 पे अल्लाह ताला अन्ना अशरत मिन हैवानात बिशरफिल कलील कन्नाकत मिन अहल कन्नाकत मिन कन्ना बिशरफिल करीम मिन अहल जन्नह कन्नाकत अबी सालेह व नमलत सुलेमान व कल्ब असहाबिल कहफ की तफसीर है। देखो मसला समझो, जन्नत में सिर्फ इंसान जाएगा, जानवर नहीं जाएगा। बोलो जानवर जन्नत में नहीं जाए। जानवर जन्नत में जाएगा? बोलो ना भाई, जानवर जन्नत में, इंसान जाएगा। और इंसान में भी सिर्फ सुन्नी मुसलमान जाएगा। सब इंसान जाएगा तो अबू जहल भी चला जाएगा का? वो जानवर है कि वो भी इंसान है? सब टोपी वाला चला जाएगा क्या? तो जिसने हुसैन को कत्ल कर दिया उसका क्या होगा? वो भी तो टोपी वाला था। सब मुसलमान जन्नत में न जाएगा, जो सुन्नी मुसलमान होगा वही जन्नत में जाएगा। सिर्फ इंसान, सिर्फ इंसान जो सुन्नी होगा वो जन्नती होगा। चाहे सजा पाकर जाओ कि बिना सजा के जाओ, मर जाओगे जरूर, है कि नहीं? तो मगर देखिए तफसीर में फरमाते हैं कि 10 जानवर भी जन्नत में जाएंगे। या अल्लाह, मसला है जानवर जन्नत में नहीं जाएगा तो ये काहे को जन्नत में जाएगा? तो फरमाते इसलिए कि इन्होंने वलियों से मोहब्बत कर लिया तो जन्नत में जाएगा। जानवर कुरान में है ना, सूरह नमल कौन पारा में है? 19वां पारा में जी। सूरह नमल, नमलता सुलेमान, सुलेमान अलैहिस्सलाम की चूंटी वो भी लंगड़ी थी, वो जाएगी जन्नत में। अरे चूंटी लंगड़ी जन्नत में। वह कल्ब असहाबिल कहा हुकुम है प्लेट चाटे कुटा तो 3 मरतबा धो तब पाक होगा। ऐसा नफा जन्नत में। मैं कहे कुत्ता तू जन्नत में कैसे चला गया? बोले इसलिए कि हमने अल्लाह वालों से मोहब्बत कर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अबे कुत्ता चला गया जन्नत में तो हम करते गौसे आदम से मोहब्बत तो हम नहीं जाएंगे जन्नत? बिल्कुल बिल्कुल, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। कुरान में इधर उधर की बात नहीं करता हूँ, कुरान में। और एक बात और सुनो, टाइम बहुत कम, एक बात सुनो। 309 साल तक 309 साल तक ये सातों बुजुर्ग यानी दीन असाबे कब सोते रहे। और का कुत्ता जो है कल्बहुम वासितुन ज़राए बिल वसी, मज़ार कब्र के बाहर चौखट पे कलाई बिछाए बैठा रहा, सोया नहीं। क्यों? चौकीदार सोता नहीं, जागता है। चौकीदार सो जाएगा तो काय को रखेंगे? कल छुट्टी कर देंगे। तुम्हें चौकीदारी के लिए रखा है, तनख्वाह देके रात भर सोता है जी, चलो छुट्टी करो। चौकीदार दिन का हो कि रात का हो, सोना नहीं है, चौकीदारी करना है। तो कुत्ता, अरे भैया ज्यादा बात मत करो, कुत्ता था चौकीदार। तो सातों बुजुर्गाने दिन 309 साल तक कुरान में सोते रहे, और कुत्ता कलाई फैलाए निगाहमानी करता रहा, जागता रहा। मैं कहा कुत्ता अपने
पहाड़ के खो में एक को आदमी नहीं, जंगल, न खाना न पानी, तो 309 साल तक जगता रहा, मगर खाया क्या जी? पानी कौन पिलाया? कुत्ता तुमको? तो कुत्ता ने कहा मौलाना साहब ये पूछने की बात है, जो वली से मोहब्बत कर लेता है तो बिला खाए पिए जिंदा रहता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसुल अरा, नारे तो हमने तकबीर। वली से मोहब्बत किया है तो कुत्ता सही, ये 2 पाँव वालों को 4 पाँव वाले से सबक हासिल करना चाहिए। वाह, 2 बहुत पाँव अच्छा। वाला बाप रे बड़ा बदमाश है जो वलियों की शान में बकवास करता है। जी, जी। उससे बेहतर तो 4 पाँव वाला कुत्ता है जो मोहब्बत करके जन्नत में चला गया। सुभान अल्लाह। कुरान शरीफ है 15वां पारा सूरह कहफ में, इधर की बात नहीं है, धोखे में मत रहना। तो हमको भी तो गौस से पाक से मोहब्बत है। या गौस तुझसे दर से शक से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा, माशाअल्लाह। इस निशानी के जो सग है। नहीं समझे? नहीं समझे? आप लोग बम्बई गए हैं? नहीं गए हैं? जी गए। हम बहुत पहले तो बम्बई में रहते ही थे, गए क्या? बम्बई में रहते थे तो हम जाते थे मौलाना न्यूरमन पॉइंट समंदर के किनारे, तो क्या देखते थे कभी कभी बाप रे 5 लाख 4 लाख 10 लाख के कार से कुत्ता निकलता था। अरे बाप रे कुत्ता कार में बैठा और कुत्ता को लेकर घूम रहा है, आदमी घूम रहा है। मैं कह रहे यार कुत्ता कार में बैठ के आया है रे, अब तेरे गर्दन में पट्टा लेकर घूम रहा है। अब शहर में कुछ कुत्ते फैल गए हैं तो म्युनिसिपलिटी वाले मार मार के भगा रहे हैं। बोले मौलाना वो बेला पट्टा वाला है ना, पट्टा वाला है, पट्टा वाला मारा नहीं जाता है। तो मैंने कहा क़यामत में फरिश्तों हम पट्टा वाले हैं, गले में कादरी पट्टा लेके आए हैं, जन्नत में जाने दो ना। बोलिए सुभान अल्लाह। पट्टा वाला मारा नहीं जाता है। आला हजरत फरमाती इस निशानी के जो सग है नहीं मारे जाते, मेरे गले में भी है दूर का डोरा तेरा। तो हम कादरी है मारे जाएंगे, पट्टा लेके जा रहे हैं ना दुनिया से। बोलो पट्टा लेके जा रहे हैं, चिश्ती कादरी बरकाती रज़वी पट्टा है गले में, क़यामत में बख्शे जाओगे इंशाअल्लाह। इसलिए जो मुरीद न हुए हो जल्दी मुरीद हो गए, पट्टा डालो गले में। जी जी। सोचते हो मुरीद होंगे तो नमाज पढ़ना होगा, कितने धोखेबाज हो आप लोग, मसला नहीं समझते हो। मुरीद पर नमाज फर्ज है कि मुसलमान पे फर्ज है? मुरीद पे फर्ज है। मुरीद रहो न रहो, मुसलमान हो तो नमाज पढ़ो। ये सोचता है क्या मुरीद बन जाएंगे तो झूठ नहीं बोलना पड़ेगा ना, हम मुसलमान हो तो झूठ बोलोगे, मुरीद हो जाएंगे तो नमाज पढ़ना होगा ना, हम मुसलमान हो नमाज नहीं पढ़ोगे। कैसा धोखा है बताइए मौलाना, धोखा है कि नहीं? धोखा है। अरे सुनो एक बात, और सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी, अरे बाप रे बाप, सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी पर एक हदीस याद आई बाबा, अगर भूख न लगी हो तो 2-3 बात और सुना। 10 बज गया, सुना देगा? जी जी सुना दीजिए। बोलो ना कुछ बाबा। तब ये खाना ज्यादा खाएंगे? खाना ज्यादा क्या खाइएगा, मुस्लिम शरीफ है, जिल्द सानी है, सफ़ा 411 है, नज़लु मअ रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलल अर्द समूद फस्तक़ू मिन आबारिहा फ़क़ाल नबी व अजनु बिल अजीन फ़क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उहरक़ू वाफ़लुल अजीन अलबल। एक मर्तबा कुछ सहाबा सरकार के साथ समुद्र की घाटी में उतरे तो वहाँ 2 कुआं था। एक कुआं था जो यहूदी का था। किसका था? बोलो ना भाई, यहूदी का। एक कुआं और था दूर पर, उस कुएं पे कभी कभी सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी जाकर उससे पानी पीती थी। बस दोनों कुएं का पानी पाक है बस। तो साहबियों ने क्या कहा, यहूद वाले कुआं से पानी भर भर के अपना मश्क भर लिया, आटा को गूंथ लिया कि रास्ता में पानी तो मिलेगा नहीं। सरकार को पता चला यहूदी वाले कुआं से पानी भरा है, सबका बहा दो सब पानी बहा दो। सब ने बहा दिया। बोले आटा गूंथे हो? हाँ बुजुर्ग। बोले ऊँट को खिला दो। सब खिला दिया, हमारा चेहरा लटक गया। अगले में पानी अब कहाँ से मिलेगा? हुजूर ने कहा पानी चाहिए। कहाँ हुजूर? बोले उस कुआं से भरो, इससे कि इस कुआं से सारे इस्लाम की ऊँटनी बैठती थी, अब पानी पीती थी, तो उस ऊँटनी पे से अल्लाह ने इस कुएं के पानी को मुतबर्रक बना दिया। जहाँ नबी की ऊँटनी बैठ जाए
وہ جگہ متبرک ہو جائے اور جہاں میرے نبی کا قدم پڑ جائے کیا وہ جگہ برکت والی نہ ہو جائے؟ بے شک بے شک بولیے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور سنو ایک بات اور بتا دیتا ہوں آپ لوگوں کو، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دیکھیے اب کہو کہ حضور ٹھیک ہے اللہ والے سے دعا کرا گے، اب تو حضور سے نیپال 23 علاقے میں وہ چلے گئے، اب بغداد والے آقا بھی چلے گئے، اجمیر والے خواجہ بابا بھی چلے گئے، تو اب کیسے دعا کرا؟ ویسا بابا تو بتائیے کہ جا کے دعا کرا لے۔ اب تو شیر نیپال بھی ہم لوگ جاتے تھے جنک پور دعا لینے، کبھی کبھی بلاتے تھے یہاں دعا کرانے کے لیے، لوکھا بلاتے تھے یہاں بلاتے تھے، حضور دعا فرما دیجئے حضور دعا فرما دیجئے، تو حضور کی دعا میں وہ تاثیر دیکھی کہ ارے ہم خادم کیا ہے ہم کیا ہے، تو سنو تو اب وہ بندہ کہاں سے لاؤ جو دعا کراؤ گے؟ کیونکہ اب تو حضور سے نیپال بھی نہیں، بابا خواجہ بھی نہیں، اور بس پاک بھی نہیں، کس سے دعا کراؤ؟ تو سنو ایک جگہ بتاتا ہوں، سننی بھائی ایک جگہ بتاتا ہوں، بتا دوں نہیں بتاؤ؟ اللہ نے قرآن میں اور میرے نبی حدیث میں کہا ہے کچھ جگہ ایسی ہے جگہ کہ اس جگہ پہ دعا کر دو گے تو جگہ کی برکت سے ہاتھ اٹھتے ہی دعا قبول ہوگا۔ سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ وہ جگہ ہے کہاں؟ جگہ ہے کہاں؟ فلسطین میں۔ میں جا کے وہاں دعا کیا ہوں جہاں حضرت مریم کی عبادت خانہ ہونا لگے دا زکریا، وہ قائم نصلی فی المحراب فنادت الملائکہ ان اللہ یبشرک بیحییٰ۔ 80 سال کی عمر میں حضرت زکریا نے عبادت خانہ میں مریم کی دعا کی، مولا ایک بیٹا تو دے دے، ہاتھ اٹھا دعا قبول ہو گئی۔ اللہ نے کہا جا یہاں آ کے دعا کرتا ہے، جگہ کی برکت سے دعا قبول ہو گئی، اللہ تم کو بیٹا دے دیا، پیدا ہو اس کا نام یحییٰ رکھ لے۔ سبحان اللہ۔ بولو جگہ پہ دعا قبول ہوئی کہ نہیں؟ بولیے نا، ہے کہ نہیں؟ قرآن میں ہے کہ نہیں؟ تو آپ کہو گے حضور فلسطین کیسے جائیں گے؟ یہ جگہ جو ہے فلسطین کیسے جائیں گے؟ پیسہ تو ہے نہیں، پیسہ نہیں ہے پیسہ ہے مگر خرچ نہیں کرنا چاہتے آپ، پیسہ ہے۔ ہم نے وہاں جا کے دعا کی ہے، جہاں حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے وہاں بہت جگہ ہے، مکہ میں ہے، مدینہ میں ہے، فلسطین میں ہے، حضرت موسیٰ کاظم کی قبر تریاکم مجرب لجابتی دعا آلات فرماتے 44 جگہ ہے جہاں ہاتھ اٹھانے سے دعا قبول ہوتی ہے، اب فرماتے 39ویں جگہ انڈیا میں خواجہ کا مزار ہے، وہاں جا کے دعا کرو گے تو ہاتھ اٹھتے ہی دعا قبول ہو جائے گی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ انڈیا میں بھی تو جگہ ہے 39ویں جگہ، بولیے نا، یہ بالکل ضروری ہے وہاں دعا قبول ہو جائے گی۔ تو اجمیر شریف جانا ہوگا، ہے کہ نہیں؟ کہیے نا سبحان اللہ۔ اب مفتی اعظم نیپال بھی وہاں نہ جا سکتے، اللہ نے تو ہے، قریب تو ہے، جاؤ نا۔ حدیث شریف ہے، میں نہیں کہتا ہوں، سنا دیتا ہوں ایک حدیث کہ وہ انسان جو ولی ہو، ولی ایک تو ایسی نقلی قبر نقلی مزار بہت بن گیا ہے جی۔ ہم جاتے ہیں وہاں بارسوئی تقریر کرنے، اب بارسوئی اسٹیشن کے قریب 3 کلومیٹر ایک بہت خوبصورت مزار بنا ہوا ہے، مولانا نے کہا حضور اس میں قبر نہیں ہے، اتنا بڑا مزار ہے، کم چادر چڑھی ہوئی ہے، بولے اس میں قبر نہیں ہے، کیا ہے؟ بولے ارے چلا گاہ کے نام پہ مزار بنا دیا ہے، لوگ اس میں عرس بناتے ہیں۔ توبہ توبہ، کیسا بے وقوف سنی ہے، گمراہ بھی ہو رہا ہے، گمراہ بھی کر رہا ہے۔ جو نہیں جانتا ہوا جا کے فاتحہ پڑھے گا، نہیں پڑھے گا، نہیں پڑھے گا، ہے جا کے دیکھے نا، ہے۔ میں کہا استغفر اللہ، کیسا بے وقوف سنی ہوتی، کمانے پینے کا دھندا بنا لیا ہے۔ مگر حدیث میں ہے جس قبر میں اللہ کا ولی ہو، سچا ولی، تو مسجدوں سے زیادہ، نماز کے بعد جو دعا کرتے ہو نا اس سے زیادہ، مجلسوں سے زیادہ، فاتحہ سے زیادہ اس مزار پہ دعا قبول ہو جاتی ہے جس مزار میں اللہ کا ولی سوتا ہے۔ ماشاءاللہ بہت اچھی حدیث سنا دیتا ہوں کہ کیسے دعا قبول ہوتی ہے۔ چلے جاؤ نا لوہنا، دور نہیں جاؤ، لوہنا چلے جاؤ نا۔ مفتی اعظم نیپال کے قبر پر 3 جنوری کو حضرت کا چہلم ہے، بڑے پیمانے پہ نہیں ہے، میں نے کہا 1 اپریل کو بڑے پیمانے پہ رکھنا، جنوری میں ٹھنڈا کے تو ہے، پھر بھی 2-4 ہزار بھی تو جمع ہی ہو جائیں گے بابا، ایسا پیر ہے کہ جمع ہو ہی جائیں گے، ہے کہ نہیں؟ 3 جنوری کو ہم بھی جائیں گے انشاءاللہ تعالی، جی من نہیں مان رہا ہے، جائیں گے سب، تو ادھر کا ہے تو جانا چاہیے نا۔ آپ لوگ جاؤ گے؟ ٹائم رہے تو چلا جانا، اس نیت سے جانا کہ تقریر بھی سن لیں گے، حضور کی بارگاہ میں دعا کریں گے، کیونکہ ہمارے نبی فرماتے ہیں، مسلم شریف جلد ثانی
बाब क़बूल तौबतिल क़ातिल इंतलिक इला अर्दिन कज़ा फ़इन्न बिहा उनासन याबुदून अल्लाह तबारक व तआला। एक आदमी था हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में, एक आदमी, समझे? अब कितना बड़ा था जानते हो? कैसा था? 99 को कत्ल किया था। बाप रे बाप, कितना बड़ा जालिम होगा आदमी। 99 आज 2 आदमी को कत्ल करते तो डरता भी है, भाई इससे बच के रहना, इससे बच के रहना, ये कत्ल कर देता है, बच के रहना, गोली मार देता है। और 99 को कत्ल किया तो सोचा तौबा करे, बाबा बड़ा पापी हो गए। तो गए एक मौलाना के पास, इत्तेफाक जो था कम पढ़ा लिखा, कम पढ़ा लिखा था, पादरी था, कम पढ़ा लिखा। बोले पादरी साहब, मौलाना साहब, बोले क्या है? बोले तौबा करनी है। तो गुंडा लोग तो ऐसे ही बोलता है ना, तौबा करनी है। बोले गुनाह क्या है? बोले मौलाना 99 को कत्ल किया हूँ। तो बोला 900 क्या है, चूहे खा के बिल्ली चली हज को, 99 को कत्ल करके आया है, तौबा कर। मत कैसे तौबा नहीं होगी? बोले नहीं। तो बोले आप क्या कीजिएगा, जिंदा रखे पूरे 100 कर। जब तौबे नहीं कबूल होगी तो आप क्या कीजिएगा? 100 मौलवी का भी काम कर जाए, 100 फिर गया एक अच्छे पढ़े लिखे मौलाना के बाद, हुजूर तौबा करने आए। बोले तौबा करना है, कितना गुनाह किया है? बोले कम किया है, 100 को कत्ल किया। अरे 100 को कत्ल किया है, बोलिए तौबा कबूल होगी? तो कहा कि अल्लाह के हबीब ने फरमाया जन्नत के 8 दरवाजे, 7 दरवाजे बंद है। वो बाबुम मफ्तूहुल लित्तौबा, जन्नत का एक दरवाजा 24 घंटा तौबा करने वालों के लिए खुला रहता है। तौबा करो, अल्लाह माफ करेगा। मगर जल्दी चाहते हो, आप उठते ही तौबा कबूल हो जाए, गुनाह माफ हो जाए। बोला हाँ हुजूर, है ऐसा नुस्खा? बोले है, हाँ हमारे नबी फरमाते है। क्या है? का तो कहाँ यहाँ काहे बैठे हो, दुआ करते करते कबूल होते होते बड़ा टाइम लगेगा, मिनटों में कबूल कराना है तो एक नुस्खा देता हूँ। बोले दीजिए, क्या नुस्खा है? इन तलिक अला अर्दिन कज़ा, फला बस्ती में जाओ, जाओ, जैसे अजमेर चले जाओ, बगदाद चले जाओ, मुफ्ती आज़म नेपाल के मदार पे चला जाओ, फला बस्ती में जाओ, वहाँ क्या है हुजूर? बोले अल्लाह क्या है? के वलियों की बस्ती है, वहाँ जाके हाथ उठा दोगे, वली के सदके में उठते ही तौबा कबूल हो जाए। वहाँ जाके हाथ उठाओ ना, यहाँ क्या कर रहा है? बेशक। अरे 100 का कातिल भागा, बड़ा अच्छा नुस्खा मिला, सब गुनाह माफ। अरे अब भागा तो रास्ते में मर गया, लो मर गया, रास्ते में गिर के मर गया। फ़क़समत मलाइकतुर रहमत वल अज़ाब, रहमत के फरिश्ते आए और अज़ाब के फरिश्ते। अज़ाब के फरिश्तों ने कहा रहमत के फरिश्तों से आप काहे को आए हो? 100 को कत्ल किया है तो मैं जहन्नम में न डालूंगा। रहमत के फरिश्तों ने कहा नहीं ले जाने दूंगा, या अल्लाह के वलियों की बस्ती की तरफ चलाता नियत करके तौबा करने, मैं जन्नत में ले जाऊंगा। तो दोनों बहस करने लगे, मैं ले जाऊंगा, उगा मैं ले जाऊंगा, उगा मैं ले जाऊंगा, उगा मैं ले जाऊंगा। अल्लाह ने कहा ठहरो, फैसला मैं करता हूँ। बोलिए बोलिए बोलिए, फैसला मैं करता हूँ। अरे क्या फैसला है सुनिए मौलाना जी। का फरिश्तों जमीन को नापो तो, जमीन को नापो तो अगर अपने बस्ती से करीब हो, मरते वक्त गिरा है, अपने बस्ती से करीब हो तो डाल दो जहन्नम में, और अगर मेरे महबूब की बस्ती से करीब हो तो डाल दो जन्नत में। माशाअल्लाह। जब जमीन को नापा गया तो एक बालिश, एक बित्ता जब गिरा था तो महबूब के बस्ती से करीब हो गया था। अल्लाह ने कहा आपके फरिश्तों छोड़ दो, पहुंचा नहीं है दर पे, मगर महबूब के दर से करीब तो हो गया है। मैंने इसके गुनाहों को माफ करके इसको जन्नती बना दिया। बताइए भैया, अरे महबूब के दर पे न पहुंचा, आइए अब तक इसी चक्कर में है कि वसीला की क्या जरूरत है, यही बैठे बैठे कर लो काम हो जाएगा। वसीला की जरूरत नहीं तो बगैर शादी के पैदा होके दिखा तो दो, तब न समझेंगे वसीला की जरूरत नहीं है। पैदा होने के लिए बीवी की जरूरत है, शादी की जरूरत है, और फिर भी कहता है वसीला की क्या जरूरत है। बताइए खोपड़ी में बुद्धि है कि नहीं है? बोलिए भैया, बगैर वसीले के काम होगा भाई? बोलिए ना होगा, नहीं होगा। सुभान अल्लाह, बातें तो बहुत है बाबू, और अब टाइम नहीं है, अब 2 मिनट और लेता हूँ, 10:15 बजे खत्म करो, खाना खाओ। बोलिए सुभान